یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے آئین، قانون اور پاکستان میں جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ اور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ جس طرح مجھے معلوم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اس گرمی میں آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، میڈیا ورکرز، کیمرہ مین اور رپورٹرز، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو کرائے کے ترجمان ہیں وہ جو بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون ہے کہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اور شبلی فراز صاحب کی میں کل گفتگو سن رہی تھی، جس قسم کی گھٹیا زبان انہوں نے استعمال کی 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف، وہ ان کی اپنی ذہنیت، چھوٹی سوچ اور ان کے اپنے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ اور کل کے بعد انہوں نے ظاہر کیا کہ ان میں اور احمد فراز میں بہت فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان کی سٹیٹمنٹ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف، وہ الفاظ، شبلی فراز کا بیان، اس اندھوناک اور افسوسناک واقعہ جو کہ ایک پاکستان کی بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی، اس کو ریڈیکیول کرتا ہے، اس کو حقارت سے دیکھتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بیان دینا میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ اور سی سی پی او لاہور ہو اور شبلی فراز کا یہ بیان، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو عمران خان سے لے کر نیچے تک اس وقت پاکستان میں مسلط ہے۔ شبلی فراز کی سٹیٹمنٹ اور سی سی پی او لاہور کی سٹیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں۔ شبلی فراز کی سٹیٹمنٹ اس بات کو کنفرم کرتی ہے، اس کے اوپر مہر لگاتی ہے، فراز انفارچونیٹلی ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ یہ فاشسٹ، گھٹیا، چھوٹی ذہنیت کی سوچ رکھتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی صحت کے ذمہ دار عمران خان ہے۔ نیب کی کسٹڈی کے اندر ان کی صحت خراب ہوئی، جس کا آج بھی پاکستان کی عوام جواب مانگ رہی ہے۔ جواب دیں نیب کا چیئرمین کہ کیوں نیب کی کسٹڈی کے اندر نواز شریف کی صحت خراب ہوئی۔ اور یاسمین راشد کی سربراہی میں پنجاب حکومت کا اور سول سروسز ہاسپٹل کے بورڈ کی رپورٹ نے یہ ریکمینڈ کیا کہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ اور آج کرائے کے ترجمان سازش کہتے ہیں۔ اگر یہ سازش ہوئی ہے تو آپ نے کی ہے، اور آپ کے پاس کرپشن کا جب کوئی ثبوت نہیں، وہ مصنوعی اور جھوٹا بیانیہ دفن ہو گیا جب پاکستان کی عوام کو یہ یقین ہو گیا کہ ایک نالائق اور نااہل کرپٹ ٹولہ، غیر جمہوری سوچ والا ٹولہ اس وقت ملک پہ مسلط ہے۔ جب پاکستان کی عوام کی آواز نواز شریف کی آواز کے ساتھ مل گئی، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ نون اور شین الگ نہیں ہو سکتے، وہ آج بھی متحد ہیں، اور یہ طاقت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ آپ نے شہباز شریف کو گرفتار کر دیا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ پاکستان کی عوام نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، تو آپ ان کی سیاست کے اوپر، ان کی صحت کے اوپر سیاست کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تمام میڈیکل رپورٹس پنجاب حکومت کے پاس ہیں۔ اس لیے فیبروری سے لے کر اگست کے مہینے تک کسی میڈیکل رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا، کسی میڈیکل رپورٹ کو ری ویریفائی نہیں کرایا گیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ جو مرضی کر لیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، اور کل بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر
जो रेजोल्यूशंस गई हैं उसकी पहली रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए की तौसीह करती है और नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है। दूसरी रेजोल्यूशन थी कि एपीसी के तमाम फैसलों के ऊपर मनोअन अमल होगा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम फैसले और पूरे मुल्क गिर तहरीक फाइनलाइज हुई और इन नालायक, करप्ट, चोर, नालायक, नाअहल टोला जिसकी सज़ा आज पाकिस्तान की आवाम काट रही है, जो 2018 में आरटीएस को बिठा कर लाया गया और इस तरह पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी हुआ, वो वोट चोरी हुए जो पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को डाले थे। इसलिए आज पाकिस्तान की आवाम बेरोज़गार है, आज पाकिस्तान में महंगाई है, आज पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी हो रहा है, आज पाकिस्तान की आवाम की गैस और बिजली चोरी हो रही है क्योंकि ये करप्ट टोला मुसल्लत है। उसके खिलाफ पीडीएम और एपीसी के तमाम फैसलों की तौसीह की गई। और चौथा कि नवाज शरीफ को पार्टी ने ये दरख्वास्त की कि जब तक उनके मौलजीन इजाज़त नहीं देंगे वो अपना इलाज मुकम्मल करा कर पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अब नवाज शरीफ खाली मुस्लिम लीग नून का नहीं बल्कि पाकिस्तान का और इस खित्ते के लिए उनकी सेहत और वो खुद एक असासा है, कीमती सरमाया है और उनकी सेहत और उनकी जान के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। और आखिरी बात, ये नालायक, नाअहल, करप्ट लोग जो चाहे कर लें। मैंने 2 टोक पहले भी कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून का फैसला है, ये जो मर्जी कर लें, ये जो मर्जी कहें, अब हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हमारी तमाम फोकस और सारी जो हमारी जदोजहद है अवाम के लिए है। अब नवाज शरीफ का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान की अवाम जो 2-2.5 साल से जिस कर्ब से गुजर रही है, जिस सज़ा से गुजर रही है, महंगाई का तूफ़ान है, दहशत गर्दी जिस किस्म की, जो कि मुखालफीन को की आवाज़ बंदी है, मीडिया की आवाज़ बंदी है, हर सियासी मुखालफीन की आवाज़ बंदी है, अब उसके खिलाफ हमारी जदोजहद है। आपने जो कहना है करें, आपने जो करना है करें, अब ये जदोजहद नहीं रुकेगी। आपने पूरी मुस्लिम लीग नून को जेल में डालना है, ये जदोजहद नहीं निकलेगी। आप इससे घटिया गुफ्तगू करें, अब इसका जवाब इस तहरीक से दिया जाएगा जिसमें तमाम अपोजिशन मुत्तहिद है। और मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि ये घटिया अल्फाज कराए के तर्जुमान जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़बान बंदी कर लें। ये ना हो कि पाकिस्तान की आवाम के हाथ हों और आपके गरेबान हों। आज हाल ये है कि आप दफ्तरों में बैठकर वीडियो मैसेजेस करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, मीडिया का सामना नहीं कर सकते, अपने हलकों में बाहर नहीं निकल सकते, बिलों में घुसे हुए हैं। तो ये उस खौफ की अक्कासी करता है, ये उस खौफ की तर्जुमानी करता है जो नवाज शरीफ, मुत्तहिदा अपोजिशन, शहबाज शरीफ का आप पर तारी है। आप जो मर्जी कहें, आप अपनी घटिया सोच की अक्कासी करते हैं। आपकी हर घटिया सोच, घटिया लफ्ज़ और घटिया बयान का जवाब अब इस तहरीक से आएगा। जो आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, जो कल के फैसले हैं, एपीसी के फैसले हैं, उन तमाम प्लान को आज पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाएगा और जो तहरीक शुरू हो चुकी है उसका पूरा प्लान आपके सामने आज शाम को दिया जाएगा। आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत, जिसकी सदारत मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून करेंगे। और आप हर रोज़ इस डर और खौफ में रहेंगे कि आज फिर नवाज शरीफ का खिताब आने वाला है। हर रोज़ आप इस कर्ब से गुजरेंगे, इस खौफ में मुब्तला रहेंगे और आपकी नींदें इसी तरह हराम हो जाएंगी। कुछ गुजरा पेश गोइयां कर रहे हैं, मरियम नवाज की गिरफ्तारी हो रही है। जब से कल मीटिंग हुई उसके बाद रात भी एक शोर रहा कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी किसी वक्त भी की जा सकती है, तो क्या ऐसी कोई इत्तलात है कि मरियम नवाज? देखिए, मरियम नवाज वो सियासी लीडर हैं जो ना गिरफ्तारी से डरती हैं, ना इन बुज़दिलों से डरती हैं, ना इन डरपोकों से डरती हैं। इनके पास आखिरी हरबा है कि रियासत को ताकत की तौर पर इस्तेमाल किया जाए। वो खातून
जो अपने वालिद के साथ सजाए मौत की चक्की में रहकर 2 दफ़ा आ चुकी है, अपने वालिद के सामने गिरफ्तार हो चुकी है। इनके झूठे इल्ज़ामात के ऊपर उनको गिरफ्तारी से और जेल से वो लोग डराते हैं जो असल में मरियम नवाज़ के खौफ में मुब्तला हैं। और अगर मरियम नवाज़ को गिरफ्तार किया गया, अगर कोई ऐसी घटिया हरकत की गई तो उसका जवाब अब पाकिस्तान की आवाम देगी। मरियम नवाज़ ना डरने वालों में से है, बल्कि वो डराने वालों में से है, जिसके डर में आजकल पाकिस्तान की जो घटिया नालायक सिलेक्टेड हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है, वो उनके खौफ में मुब्तला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो एक कैफियत एक सूरत पैदा हुई है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो मुकम्मल होगी? देखिए, पाकिस्तान की सियासत अब इज्जत की सियासत होनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत अब पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान के आइन में तमाम अदारों का जो रोल है वो उसका तयन हो चुका है। नवाज शरीफ जब वोट को इज्जत दो की बात करता है तो वो पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के दस्तूर की, पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती और पार्लियामान की बालादस्ती की बात करता है। और जो बात खाली मुस्लिम लीग नून नहीं, अब पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी करती है, पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम कर रही है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो टीचर्स हैं वो कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी कर रही है, लॉयर्स कर रहे हैं, बार काउंसिल्स कर रही हैं। इसलिए ये आवाज़ अब पाकिस्तान की आवाज़ है कि वोट को इज्जत दो और पाकिस्तान में आइन और दस्तूर की इज्जत करो। देखिए, बड़ी वाजिया बात है और इसका कल पार्टी ने फैसला भी किया, जो आज अनाउंसमेंट हुई है। ऐसी लोगों की ज़रूरत नहीं है जो नज़रियाती तौर पर नवाज शरीफ के साथ ना हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ना हो। पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ उस बयानिए की तौसीह कर चुके हैं और अब ये बात पार्टी के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ है, बहुत क्लैरिटी के साथ है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोग रह सकते हैं जो कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होंगे, और बाकी वो तमाम लोग जो इस बयानिए, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के दस्तूर और पाकिस्तान के कानून के साथ नहीं है, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। CWC के मेंबर जो हैं वो तलाल चौधरी और आयशा रजब भी हैं, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं? देखिए, ये आप बहुत ही एक छोटे लेवल पे बात आपने की है। इस CWC का जो एजेंडा है, मैंने पहले जैसे कहा, वो पाकिस्तान के आइन, कानून और हुक्मरानी अवाम की को इंडोर्स करता है और इसकी जदोजहद का आगाज़ और उसका प्लान आज पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा है। अच्छा, ये बताइए, जब आप फैसला कर चुके हैं कि ये लड़ाई लड़नी है और उसके लिए मुस्लिम लीग नून खड़ी भी होगी, यकीनन नजर नहीं आ रहा है, तो क्या इस जंग को लड़ने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जो कि अवाम की जंग है, आइन की जंग है, मियाँ साहब खुद भी तशरीफ लाएंगे इस जंग को लड़ने के लिए? देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब की, मैंने पहले जैसे कहा कि वो वहाँ रहकर इसको लीड करेंगे, हर इजलास की सदारत करेंगे जैसे कि वो कर रहे हैं, और हर लम्हा ये जो पूरा प्लान बना है मुस्लिम लीग नून का, इसमें लम्हा बर लम्हा वो मौजूद थे। पूरी जब फाइनलाइजेशन एक्टिविटी की भी हुई, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ कि जो तर्जुमानों की बुखलाहट है, इमरान खान की बुखलाहट है, क्योंकि उनका मसनूई बयानिया दफन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की कॉन्फर्मेशंस आ चुकी हैं। इसलिए उनको ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान अवाम जानती है कि नैब न्याजी गठजोड़ इस्तेमाल किया जा रहा है इन तमाम चीज़ों से डिफ्लेक्ट करने के लिए और तमाम मुखालिफ आवाज़ों को बंद करने के लिए। शुक्रिया। ये कह रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ ने कल के इजलास में ये कहा कि जहां इज्जत ना हो वहाँ की ऐसी सियासत, कौन सी सियासत? इसका ये कॉन्टेक्स्ट भी लिया जा रहा है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब ने ये इशारों में बात समझाई है कि जहाँ पे इज्जत नहीं होगी मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा वापस और मैं यहीं पे रहूँगा। इसी में ऐड करने के जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी अदालत ने इस तरह के रिमार्क्स दिए थे, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जनरल मुशर्रफ जो है वो आइन, मेरा सवाल पीछे चला गया, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। पहली बात जो है कि जनरल मुशर्रफ की बात करने का दम, कल शिबरी फराज साहब से सवाल हुआ कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को क्यों नहीं उनकी बात करते, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब सिलेक्टेड टोला मुसल्लत हो जो कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करे, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करे और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए, तो जब
पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट जिस हुकूमत के पास नहीं होगा वो किसी किस्म की ना ताकत रखती है, ना किसी किस्म का नज़रिया रखती है और ना किसी किस्म का रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को दे सकती है। जी मेरा सवाल ये था कि जो मियां नवाज शरीफ का जो ये कहना था कि जहां जी बिल्कुल, बात ये है कि कल दो टोक अल्फाज में, और आपको मालूम है कि 2-2.5 साल से जो 3 साल से जो जदोजहद वोट को इज़्ज़त दो की नवाज शरीफ साहब की शुरू है, उसमें पहली बात यह है कि एक एक वोट पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त होनी चाहिए। और जिस सियासत में इज़्ज़त नहीं है, जिस सियासत के अंदर आप इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के दूसरों की जग हसाई करें, दूसरों की इज़्ज़त के ऊपर हाथ उठाएं, हर्फ उठाएं, ऐसी सियासत हमें मंजूर नहीं है। अब सिर्फ वो सियासत होगी जो पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।